Now I am starting A2 syllabus, and now for A2 chemistry, I am starting with chemical energetics, and definitely we already discussed the points behind AS syllabus related to chemical energetics. ये वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम उसको रिकॉल कर चुके हैं. Now in our A2 syllabus, let me start with the first term before I go to the basic definition of. Anyone can give me an idea about a term lattice? What do you know about lattice? What is mean by lattice? Anyone can answer? Please unmute your mic and give the answer. Message. Complex. Okay. Anything else? What do you know about the lattice? देखिए कितनी basic term है. आप नाम सुनते रहे हैं lattice का, but no one is able to define properly. Okay. Someone said structure or type of structure, but still we are not close to the answer. Lattice is a structure which repeats in T dimension. Yes, Haris Hussain. The structure which repeats in 3 dimension. जैसे आप एक कमरा बनाते हैं ना, कमरे के अंदर आपको क्या करना होता है, आप ईंटों को जोड़ते हैं, तो यू कैन कनेक्ट, और फिर वो एक बेसिक स्केलेटन, एक कमरे से दूसरा, तीसरा, चौथा, और आपस में वो कनेक्ट होकर आप एक पूरा घर बना लेते हैं. So similarly, when we talk about lattice structure, so it is a structure which repeats in 3 dimension. या आप इसको कह सकते हैं a basic unit which repeats in 3 dimension. हम उस structure को lattice structure कहते हैं. The structure which repeats in 3 dimension. For example, if you know, this is a lattice, and if you remember, this lattice is called cubic in shape, and every corner of a cube, एक को मैं रेड से मार्क कर रहा हूं और एक को मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये एक आयोनिक लैटिस है. दिस इज एन आयोनिक लैटिस. And why it is ionic lattice? Because you see, there is one red and other green. Red and green. So there are 2 different ions, or there are 2 different particles. Now they are repeating in 3 dimension.
अब ये ऐसा ही क्यूब इससे कनेक्ट होगा, इसके ऊपर भी ऐसा ही क्यूब होगा, इसके नीचे भी ऐसा ही क्यूब होगा, इसके आगे इसके पीछे। तो बेसिकली आयोनिक लैटिस में क्या होता है कि आयोनिक लैटिस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का कॉम्बिनेशन होता है। So now if this is positive ion, it will be negative, positive, negative, negative को सामने positive, positive के सामने negative. So there is a repetition of basic unit in 3 dimension. उसको हम lattice कहते हैं, and this is an example of ionic lattice where positive ion is surrounded by negative ion and a negative ion is surrounded by positive ion. So पॉजिटिव नेगेटिव को सराउंड कर रहा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव को सराउंड कर रहा होता है। ऐसे लैटिस को हम आयोनिक लैटिस कहते हैं। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रक्चर शोइंग आयोनिक लैटिस। तो ये तो बात हो गई लैटिस की। लैटिस मुख्तलिफ होते हैं। आयोनिक लैटिस होता है, ये तो मैंने सामने आपके बनाया है। इसके अलावा सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है, जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है, मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, so there are different type of lattice structure which we have, but in all the cases, in all lattice structure, we have an arrangement of atom, molecule or ion which repeats in 3 dimension to make a huge molecular structure, to huge structure, the huge crystalline structure. इस ह्यूज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लैटिस। होपफुली आपको मेरी बात लैटिस की समझ में आ गई होगी। नाउ द फर्स्ट टर्म which is a part of A2 syllabus, it is a term known to be lattice energy. आपने ये डेफिनेशन एएस में नहीं पढ़ी, इट्स अ न्यू पार्ट, इट्स अ न्यू डेफिनेशन। लैटिस एनर्जी डेफिनेटली एनर्जी है, और लैटिस का टर्म जब इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मतलब है कि इट इज लैटिस रिलेटेड एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी की ये जो टर्म है, इट इज रिलेटेड टू आयोनिक लैटिस ओनली। The term lattice energy is used for ionic lattice only. And how ionic lattice is formed, वो मैंने आपको बताया previous part में कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर प्रीवियस स्लाइड पे जाता हूं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। Now because of this attraction, lattice energy is known to be exothermic in nature, because when lattice is formed, when ionic lattice is formed, then positive and negative ions, positive and negative ions attract each other. Positive and negative ions attract each other. अच्छा, अब जो लोग फेमिलियर हैं इस बात से वो ठीक है, जिनको नहीं पता याद रखिएगा, केमिस्ट्री में जब भी अट्रैक्शन होती है एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्म होता है, अट्रैक्शन होती है, एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, अट्रैक्शन खत्म करनी है, जहां रिपल्जन होता है, रिपल्जन की वजह से आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अट्रैक्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस and repulsion is always an endothermic process. Repulsion is always an endothermic process. Attraction is always an exothermic process. So basically lattice energy is all about related to formation of ionic lattice.
Now how we define? There is a 2 or 3 mark definition which we have in the past paper. Number of time ये question आया हुआ है और इसे हम define करते हैं कि it is amount of energy. It is amount of energy produced because it is exothermic in nature. So that's why amount of energy produced when 1 mole of ionic lattice, 1 mole of ionic lattice forms with its देखें, अब आयोनिक लैटिस बनाने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन. तो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक लैटिस फॉर्म्स विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जिनसे वो बने हुए हैं, with its constituent gaseous ions. One mole of ionic lattice forms with its constituent gaseous ions. इस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी. 1 मोल ऑफ आयोनिक लैटिस बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन से बनेगा. अब शायद ये बात ना समझ में आई हो, मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में शो करता हूं तो होपफुली ज्यादा क्लियर होगा. जैसे if we want to make 1 mole of sodium chloride which is an ionic lattice, ionic lattice हमेशा solid होगा. तो इसके लिए आपको स्टेट सिंबल्स का मसला नहीं है, स्टेट सिंबल मेंशन करना जरूरी है, बट प्रोडक्ट साइड पर बिकॉज ऑफ ionic lattice it is always solid in nature. And 1 mole of ionic compound form, 1 mole of ionic lattice forms with its constituent gaseous ions. Now you see sodium chloride is made up of 2 ions. One is sodium ion, other is chloride ion. So when you write an equation regarding lattice energy, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे Na positive which is a constituent gaseous ion और Cl negative which is again a constituent gaseous ion, लेकिन इनके जो state symbols हैं that should be gaseous in nature. Now this equation represents lattice energy. This equation represents lattice energy of sodium chloride. Lattice energy of sodium chloride. और अगर आप यहां पर लिखेंगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो फिर आपको पता है कि इसके साथ नॉट का साइन आ जाएगा. तो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन अगर आप लिखेंगे, तो फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में हम नॉट का साइन लगाते हैं. तो दिस इज डेल्टा H नॉट LE. दिस LE रिप्रेजेंट्स लैटिस एनर्जी. और कुछ बुक्स में या कुछ पेपर्स के अंदर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा LATT. इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. LE और LATT, ठीक है, ये दोनों सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं लैटिस एनर्जी को. ये दोनों सिंबल्स जो हैं वो लैटिस एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं. तो लैटिस एनर्जी जो है वो क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक लैटिस फॉर्म विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. इस इक्वेशन को हम कहते हैं, इस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी.
होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं और भी एग्जांपल्स दूंगा, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन आस्क करें, बिकॉज मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अब देखें A2 शुरू हो गया है, नई चीजें आप पढ़ेंगे तो इट टेक्स टाइम। अगर प्रॉब्लम होगा तो अल्टीमेटली आपको फौरन डिस्कस करना चाहिए। जहां मैं पॉज कर रहा हूं वहां पर आप मुझे बताएं कि वॉट एवर द प्रॉब्लम यू हैव उसको हम एड्रेस करें। ओके, होपफुली कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल। सपोज आई वांट टू राइट इक्वेशन रिगार्डिंग lattice energy of PbI2. I want to write an equation regarding lattice energy of PbI2. अब होगा यही पेपर में, जैसे पेपर में नॉर्मली फर्स्ट डेफिनेशन आती है कि लेटिस एनर्जी आपने डिफाइन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि राइट एन इक्वेशन टू शो लेटिस एनर्जी ऑफ, कोई भी कंपाउंड का फार्मूला दे देंगे। जैसे ये आ गया कि राइट एन इक्वेशन टू शो lattice energy of PbI2. Now, in order to write lattice energy equation, first of all, you should write 1 mole of ionic compound at product side. ये मैंने आपको PbI2 की वैल्यू लिखनी थी लेड टू आयोडाइड की, तो मैंने लेड टू आयोडाइड जो है वो प्रोडक्ट साइड पे लिख दिया। Now, what are the constituent gaseous ions? यानी कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आइंस का मतलब यह है कि ये किससे बना हुआ है? ये दो चीजों से बना हुआ है। क्या क्या बना हुआ है? एक ये बना हुआ है लेड टू, इट इज लेड टू पॉजिटिव आयन गैसियस। एंड व्हाई इट इज लेड टू आयोडाइड? रीजन ये है कि आई पर आप सबको पता है कि आई का जो अपना चार्ज है वो -1 है, और आई -1 का मतलब ये है कि 2 आई यहां पर है तो पीबी का चार्ज +2 हो जाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर आपने 2 लिखना। Now this is an equation showing lattice energy of PbI2. Now try to write down, डेफिनेटली आप शेयर अगर करना चाहें तो शेयर करें, और अगर आप लिखना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, try to write down equation related to lattice energy of barium sulfate. बेरियम सल्फेट की लैटिस एनर्जी की इक्वेशन आपने लिखनी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट बेरियम सल्फेट एट प्रोडक्ट साइड। द कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस आर, बेरियम सल्फेट के कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस क्या क्या होंगे? बेरियम सल्फेट, नाम से पता चल रहा है बेरियम सल्फेट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में बेरियम आयन, और आपको पता है कि बेरियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, तो इसका चार्ज +2 होगा, तो बेरियम 2 गैसियस आयन, और SO4 2 नेगेटिव आयन, दिस इज सल्फेट 2 आयन। अब यहां पर यूजुअली स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं, अब जैसे कुछ बच्चों ने भेजा है बिल्कुल एंड सल्फेट, बिल्कुल ठीक है, बेरियम एंड सल्फेट। अब कुछ स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं यहाँ पर, वो ये करते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देते हैं, एंड दैट इज रॉन्ग। तो जिन लोगों ने सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग किया है वो गलत है, बिकॉज यहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस चाहिए, और यहाँ जो आयन है बेरियम सल्फेट, यहाँ पर आयन जो है वो बेरियम सल्फेट है जी।
Any question? Okay, now we are taking another example and try to write down an equation regarding aluminium nitrate. Lattice energy of aluminium nitrate. Now, lattice energy of aluminium nitrate, तो aluminium and nitrate, aluminium और nitrate जो है वो दो पार्ट हैं इसके, aluminium and nitrate. So first of all, you have to write down an equation, और इक्वेशन के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो as it is आएगा, solid. This is aluminium nitrate solid ionic lattice. Now the constituent gaseous ions are, number one is aluminium ion gaseous plus nitrate ion, that is gaseous. और यहाँ पे nitrate taking thrice है, तो taking thrice का मतलब ये है कि we will take 3 here. Nitrate का coefficient 3 हो जाए. Now this equation represents lattice energy of aluminium nitrate. Hopefully आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो है कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो प्लीज. मोहम्मद हुजैफा शोएब, बेटा मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, तो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. ओके जी, तो ये तो हो गई कि इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे. दिस इज योर होमवर्क. आप अपना जो है वो होमवर्क जो है व्हाट्सएप पर जो है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जस्ट टू राइट द इक्वेशन. तो मैं उसमें आपको कोई करेक्शन होगी तो बता दूंगा. मैं कुछ कंपाउंड के फार्मूलाज लिख रहा हूँ, एंड यू हैव टू राइट डाउन, उनकी इक्वेशन लिखिएगा कि लैटिस एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. नंबर 1 इज एल्यूमिनियम सल्फेट, next is calcium chloride. The next one is barium nitrate and FeCl3 iron 3 chloride, and then you have copper 3 this is copper phosphate. का स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आप जो है वो ये इक्वेशन लिख सकें, क्योंकि जब ये अपलोड होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसमें फिर आपके पास काम करने के लिए नहीं होगा. काइंडली इसका स्नैपशॉट ले. ओके जी, होपफुली आप लोगों ने ले लिया होगा इसका स्नैपशॉट. नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स फैक्टर्स affecting magnitude of lattice energy. देखिए, हमने स्टार्ट किया लैटिस एनर्जी से कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, फिर हमने ये डिस्कस किया कि लैटिस एनर्जी की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है. अब हम नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं
कि लैटिस एनर्जी के मैग्नीट्यूड पर कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. Factors affecting magnitude of lattice energy. And why I'm talking about magnitude, because इसमें usually student confuse रहते हैं. मैग्नीट्यूड हम इसलिए कह रहे हैं मैग्नीट्यूड हम इसलिए कह रहे हैं मैग्नीट्यूड हम इसलिए कह रहे हैं कि लैटिस एनर्जी इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. और अगर लैटिस एनर्जी एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक का मतलब साइन शुड बी नेगेटिव. तो स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज, क्योंकि वैल्यू जब नेगेटिव वैल्यू बढ़ती है तो बेसिकली मैथमेटिकली तो इक्वेशन वैल्यू कम हो रही है. तो बेसिकली वी आर नॉट कंसर्न विद द साइन, वी आर कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड. सही है. लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगी, हमेशा वो एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन हमें उसके मैग्नीट्यूड को देखना होता है. ना फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ लेटेस्ट एनर्जी में जो पहला फैक्टर है, वो पहला फैक्टर हम लेते हैं आयोनिक रेडियस और आयोनिक साइज. साइज ऑफ द आयन या साइज रेडियस ऑफ द आयन, इसका एक रिलेशन बनता है विद द मैग्नीट्यूड ऑफ लेटिस एनर्जी. और क्वेश्चन ये रेस होता है कि ये रिलेशन क्या बनना चाहिए. अगर आप में से कोई सोचे और मुझे बताए कि व्हाट वुड बी द रिलेशन इन बिटवीन आयोनिक रेडियस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लेटिस एनर्जी, ये जहन में रहे कि लेटिस एनर्जी डिपेंड करती है अट्रैक्शन पर. जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ही लेटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. जितनी ज्यादा हाईली अट्रैक्टेड होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड जो है वो होगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. तो प्लीज अगर कोई जो है वो कर सकता है, कोई अपना आइडिया. ओके, एक स्टूडेंट ने अपना एक आइडिया दिया, देख लेते हैं उनका. इन्होंने नेहा फराज ने कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अरहम महमूद ने कहा कि स्मॉलर द आयनिक साइज ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड. यस. अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी ठीक है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल की टर्म हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी से कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप. हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप, सो वी जस्ट कंपेयर. कि इस तरह से कंपेयर करेंगे कि एक के बढ़ने से दूसरे पे क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, एक के बढ़ने से दूसरे के साथ क्या होगा, या एक के कम करने से दूसरे के साथ क्या होगा. अब आप सोचिए लॉजिकली कि अगर आयोनिक रेडियस छोटा होगा तो वो जो दूसरा पार्टिकल है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, अगर आयोनिक रेडियस छोटा है तो वो दूसरे पार्टिकल को अपने ज्यादा क्लोज कर लेगा. यानी कि उसके न्यूक्लियस और आने वाले पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होगा. जब डिस्टेंस कम होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी, और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करती है तो मैं आपको बता चुका हूं कि अल्टीमेटली क्या होता है. ज्यादा अट्रैक्शन का मतलब मोर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी मोर मैग्नीट्यूड. तो अब रिलेशन ये बनता है कि ग्रेटर द आयोनिक रेडियस, जितना आयोनिक रेडियस ज्यादा होगा, ग्रेटर द आयोनिक रेडियस, then lesser will be the magnitude of lattice energy. Lesser will be the magnitude of lattice energy. लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम होगा जैसे जैसे आयोनिक रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आयोनिक रेडियस का बड़ा होना, बड़े होने का मतलब क्या है, ग्रेटर द आयोनिक रेडियस then lesser will be the attraction. lesser attraction किसके दरमियान, lesser attraction in between
nucleus of one atom with the electrons of other atom, with the electrons of other atom. ये है बेसिक आइडिया कि आयोनिक रेडियस जब छोटा होगा तो वो दूसरा पार्टिकल ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होगा, अट्रैक्शन की पावर ज्यादा होगी। और अगर आयोनिक रेडियस जो है वो बड़ा हो जाएगा तो दूसरे एटम के साथ उसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन की पावर वीक हो जाएगी। और जब अट्रैक्शन की पावर वीक होगी तो आयोनिक रेडियस बढ़ेगा, मतलब ये है कि लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम हो जाए। अब मैं आपको ये बात ग्रुप में रख के समझाता हूं, वो इस तरह से कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड ये दो कंपाउंड हैं और एग्जामिनर आपसे कहता है कि कंपेयर एंड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप of lattice energy in between sodium chloride and potassium chloride. तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के दरमियान क्या रिलेशन आपको बनता हुआ नजर आता? नाउ क्लोराइड एंड क्लोराइड आर कॉमन इन बोथ ऑफ द एग्जांपल, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम आर डिफरेंट। अब आप पीरियोडिक टेबल पे जाइए, जरा सोचिए कि पीरियोडिक टेबल में सोडियम एंड पोटेशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल, एंड ग्रुप 1 का मतलब ये है कि दोनों का चार्ज +1 है, तो चार्ज तो दोनों का सेम है। लेकिन सोडियम पीरियोडिक टेबल में ऊपर और पोटेशियम नीचे है, और डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द एटम या आयोनिक रेडियस हमेशा इंक्रीज होता है। तो बेसिकली अगर हम कंपेयर करें सोडियम आयन और पोटेशियम आयन को, तो पोटेशियम आयन हैज ग्रेटर आयोनिक रेडियस एज कंपेयर टू सोडियम आयन, and if potassium ion has greater ionic radius as compared to sodium ion, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम आयन के पास अट्रैक्शन कम होगी, पोटेशियम का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड is greater than लैटिस एनर्जी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। और उसका रीजन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप वो रीजन बता सकते हैं कि बिकॉज पोटेशियम आयन हैज greater ionic radius as compared to sodium ion. आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। There is another example. Suppose we are talking about calcium chloride and calcium iodide. And now suppose we want to compare in between calcium chloride and calcium iodide. Now in case of calcium chloride and calcium iodide, calcium ion is common. इसका मतलब है कि लैटिस एनर्जी में जो भी डिफरेंस आएगा, इट इज ड्यू टू क्लोराइड एंड आयोडाइड।
Now, if we go to group 17, chloride and iodide both are the member of group 17. अब ग्रुप 17 में अगर आप क्लोरीन और आयोडीन की पोजीशन देखें तो क्लोरीन ऊपर और आयोडीन नीचे है, और हमें पता है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप आयोनिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो आयोडाइड आयन इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोडाइड आयन के पास अट्रैक्शन की पावर कम होगी एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन। तो अब मैं यहां पर कह सकता हूं कि लेटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड is greater than lattice energy of calcium iodide, और यहां पर भी रीजन वही ऑपरेट करेगा कि क्लोराइड आयन इज स्मॉलर एज कंपेयर टू iodide ion. So chloride ion has greater attraction, that's why it has greater magnitude of lattice energy. होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल है बेटा तो पूछ लीजिए। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह के सवाल पास पेपर में मौजूद हैं। सर कैन यू बैक टू द प्रीवियस स्लाइड ऑफ आयनिक रेडियस, आई वांट टू मेक नोट। सर कैन यू गो बैक टू प्रोवाइड स्लाइड ऑफ आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस वाली स्लाइड ये वाली, this is ionic radius. The greater the ionic radius, lesser will be the magnitude of lattice energy. कोशिश किया करें बेटा स्नैपशॉट्स ले लिया करें ताकि आपको जो है वो उसी वक्त फिर बाद में उसको आप नोट्स पढ़ें, बुक से पढ़ें, ताकि टॉपिक देखें। A2 में टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बुक के बगैर इंप्रूव नहीं करेगी। What vocabulary you need, you have to read the book. हम तो आपको बता ही रहे हैं, बट जब आप बुक से और पढ़ेंगे तो आपकी चीजें क्लियर होंगी। माइट यू हैव मोर क्वेश्चन इन योर माइंड, ताकि आप जो है वो उसको डिस्कस करें। बिकॉज पेपर 4 जो है इट इज ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल्स। आपको उसमें केमिस्ट्री की वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी है। तो जब तक आप प्रॉपर वोकैबुलरी नहीं पढ़ेंगे, बुक को रीड नहीं करेंगे, इन चीजों को इन टर्म्स पे गौर नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे इन टर्म्स को, डेफिनेटली इट विल मेक डिफिकल्ट फॉर यू। Sir, you can repeat both the example. मैं both example को repeat तो कर दूंगा, लेकिन मुझे बताओ बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या है। पहली बात तो ये वाला अगर रिलेशन समझ में आ गया तो फिर आपको ये बात कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आयोनिक रेडियस, जितना रेडियस बड़ा होता जाएगा, जितना आयोनिक रेडियस बड़ा होगा, देखो अगर ये एक साइज है और एक साइज ये है, तो अल्टीमेटली जो बड़ा वाला रेडियस है उसका डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब है कि जिस पार्टिकल को वो अट्रैक्ट करना चाह रहा है वो उससे दूर है। अब पार्टिकल जितना दूर है उतनी अट्रैक्शन कम होगी, और जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतना ही जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतना ही मैग्नीट्यूड कम होगा। अब मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल दी थी सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड की, वो एग्जांपल ये है कि सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड में क्लोराइड इज कॉमन, क्लोराइड इज कॉमन, और सोडियम और पोटेशियम की वजह से चेंज आएगा जो भी आएगा। अब आपने देखा पीरियोडिक टेबल में सोडियम एंड पोटेशियम बिलोंग्स टू सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जब पोटेशियम और सोडियम एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो सोडियम ऊपर है पीरियोडिक टेबल में, पोटेशियम नीचे है। नाउ फ्रॉम योर एज नॉलेज, एज यू नो, as we go down the group ionic radius and atomic radius increase होता है because of increase in number of shells, number of orbits. तो जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे साइज बड़ा होगा, रेडियस बड़ा होगा, अट्रैक्शन की पावर कम हो जाएगी। तो पोटेशियम आयन हैज ग्रेटर आयोनिक रेडियस एज कंपेयर टू सोडियम आयन, सो दैट्स व्हाई पोटेशियम आयन हैज ग्रेटर अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन। तो जब पोटेशियम आयन के पास अट्रैक्शन कम है तो इसी वजह से उसका लेटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम हो। सेम विद कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम आयोडाइड, इसमें भी आप देख सकते हैं कंपैरिजन कि कैल्शियम क्लोराइड में क्लोराइड और आयोडाइड में कंपैरिजन है। क्लोरीन इज अबव इन द पीरियोडिक टेबल while iodine is below in the periodic table. Iodine is larger in size as compared to chlorine. So if iodide ion has greater ionic radius as compared to chloride ion, so chloride ion has greater attraction. And if chloride ion has greater attraction, then definitely हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ऑब्जर्व करेंगे
कि इस केस में कैल्शियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कैल्शियम आयोडाइड। होपफुली जो बात मैंने रिकॉल करवाई है वो समझ में आ गई होगी। मैं आपके सामने कुछ कंपैरिजन अगेन लिख रहा हूं, ट्राई टू फाइंड आउट, अभी नहीं लेकिन आप कीजिएगा इनको ट्राई कि आप इनमें डिफरेंशिएट कर सके। और वो है लाइक बेरियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट, सिमिलरली कॉपर 2 सल्फेट एंड Mn2 मैग्नीज सल्फेट। अच्छा जी, अच्छा ये जो मैंने एग्जांपल आपको दी है दूसरी वाली कॉपर सल्फेट एंड मैग्नीज 2 सल्फेट, अब ये कॉपर और मैग्नीज दोनों पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट में मौजूद है और इनके आयोनिक रेडियस की वैल्यू आपको डेटा बुकलेट से मिलेगी। सम टाइम ऐसा भी करता है एग्जामिनर कि आपको जो दो कंपाउंड देता है उनमें आपको नहीं उनमें एलिमेंट का रिलेशन नहीं होता, यानी सेम ग्रुप पे नहीं होते। तो अगर ये कॉपर और मैग्नीज सेम ग्रुप में नहीं है लेकिन स्टिल एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता है कि डेटा बुकलेट में आयोनिक रेडियस की वैल्यूज गिवन है, तो आप कॉपर और मैग्नीज दोनों की डेटा बुकलेट से आयोनिक रेडियस की वैल्यू पिक करेंगे। ठीक है, आप फ्रॉम डेटा बुकलेट आयोनिक रेडियस की वैल्यू पिक करेंगे और फिर आप कंपेयर करेंगे कि जिसका आयोनिक रेडियस छोटा होगा उसकी आयोनिक अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उसका लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। तो होपफुली आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। ये दो कंपैरिजंस कीजिएगा ताकि जो है वो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाए। रीजन तमाम केसेस में सेम होता है कि जिसका आयोनिक रेडियस छोटा होता है उसके पास अट्रैक्शन ज्यादा होती है और जब अट्रैक्ट वो ज्यादा करेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो अल्टीमेटली ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क मी। ओके जी, नाउ द सेकंड रिलेशन, पहला रिलेशन आयोनिक रेडियस था। नाउ the second factor which can affect upon magnitude of lattice energy is ionic charge. ionic charge जो है, ionic charge ये भी इफेक्ट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी पर। अब आयोनिक चार्ज किस तरह से मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट करता है इसको भी आप खुद सोच सकते हैं। चलें ओपन करते हैं फोरम, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपना इसमें शेयर डाले कि what do you think about relation in between ionic charge and amount magnitude of lattice energy? Anyone can? Yes, one message. Hira Rahman, Hira said that it is directly proportional. Fine, Hira. If it is directly proportional, then again it is a mathematical relationship. बिल्कुल बात ठीक है, but it is a mathematical relationship. When we say we are just talking about relationship, तो relationship में we just say कि एक को बढ़ाने पर या कम करने पर दूसरे पर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो लॉजिकली सोचते हैं कि अगर आयोनिक चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, अम्मार रजा ने कहा कि ग्रेटर द आयोनिक चार्ज ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी। अम्मार की बात बिल्कुल ठीक है बेटा। ये जो है वो आप लोग जो लेट कमर्स हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता जब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, अगर आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में क्या आएगा। प्लीज क्लास टाइम को फॉलो करें, नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। आप दुनिया में इस वक्त यही पढ़ाई हो रही है बेटा, इसी तरह से पढ़ना है। तो जब इस तरह से पढ़ना है, जितनी जल्दी अपने आप को एडजस्ट करोगे उतना ही बेहतर है। अब रिलेशन ये बना कि ग्रेटर द आयनिक चार्ज, अच्छा लॉजिकल बात भी है कि जब आयनिक चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन की पावर ज्यादा होगी।
पार्टिकल एक दूसरे को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे. तो ग्रेटर द आयोनिक चार्ज, देन greater will be the magnitude of lattice energy. जितना आयोनिक चार्ज ज्यादा होगा उतना ही लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. क्यों? ग्रेटर आयोनिक चार्ज का मतलब ये होगा कि पार्टिकल एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे. Greater ionic charge means greater will be the attraction. And if the two particles are attracting more strongly, if the two particles are attracting more strongly to each other, तो फिर जो है ये बात मुश्किल हो जाएगी. जितना अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी उतना ही मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा हो. अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम फ्लोराइड, इन दोनों को कंपेयर करते हैं. नाउ फॉर सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम फ्लोराइड, रहमान, इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. जितना चार्ज ज्यादा होगा, ग्रेटर अट्रैक्शन का मतलब यही है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, बिकॉज व्हेन वी हैव आयोनिक चार्ज, तो चार्ज ऑलवेज हैज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. अच्छा, सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम फ्लोराइड. नाउ फ्लोराइड इज कॉमन इन बोथ ऑफ द केसेस, but sodium has +1 ion and magnesium has +2 charge. अच्छा, सोडियम और मैग्नीशियम में एक और चीज जो कॉमन है वो क्या है कि सोडियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर. मेरा ख्याल है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक की टर्म आप सबको पता होगी, और जिनको नहीं पता कि सोडियम एंड मैग्नीशियम हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सोडियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, बट द चार्ज ऑफ सोडियम इज +1 क्योंकि उसका प्रोटॉन नंबर 11 है, while the charge of magnesium is +2. मतलब चार्जेस इनके जो है वो अलग अलग हैं. तो अल्टीमेटली मैग्नीशियम आयन का अट्रैक्शन की पावर, बिकॉज ऑफ ग्रेटर आयोनिक चार्ज, मैग्नीशियम आयन की अट्रैक्शन की पावर एज कंपेयर टू सोडियम आयन ज्यादा होगी. तो अब यहां आप लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम फ्लोराइड has more lattice energy as compared to सोडियम फ्लोराइड, और उसका रीजन आप वही लिखेंगे कि मैग्नीशियम आयन हैज ग्रेटर आयोनिक चार्ज एज कंपेयर टू सोडियम आयन. तो मैग्नीशियम फ्लोराइड की जो लैटिस एनर्जी है ज्यादा होगी. बिल्कुल ठीक है, because magnesium ion has more charge, more positive charge. अच्छा, अब ये सिर्फ पॉजिटिव आयन की हद तक ही नहीं है, it is also valid to negative ions. For example, अगर मैं आपसे कहता हूं कि you have sodium fluoride and you will compare with sodium oxide. Now, in this case, sodium is common, but fluoride and oxide are isoelectronic to each other. Fluoride is -1 and oxide is -2. So oxide has greater ionic charge. So now we can say that lattice energy of sodium oxide is greater than lattice energy of sodium fluoride. और इसका रीजन यही होगा कि oxide ion has greater ionic charge, therefore it has stronger electrostatic forces, therefore it has stronger attraction, and therefore the magnitude of lattice energy for sodium oxide is greater as compared to sodium fluoride. तो ये चीजें आपको मैंने बताई हैं. अब करना आपने ये बेटा कि बुक से ये रीडिंग आपने करनी है,
बुक में कोई अगर लाइन है उसको मार्क करना है, एंड यू शुड डिस्कस विद मी इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। होपफुली अल्लाह ताला आपको जो है वो आसानी देंगे, पढ़ें इसको दोबारा, मैं जो काम मैंने पढ़ाया है वो चेक करें और बुक से पढ़ें। होपफुली आपको जो है वो बेटर एंड कंफर्टेबल फील होगा। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।